نکلا ہے ابھی بینک کے باہر کھڑے پر ہے, انہوں نے گولی ماری, قتل کر دیا اور پیسے بھی لے کے چلے گئے, بچا لیا بینک نے. اور کئی میں نے ایسے واقعات بھی سنے, حاجی صاحب نے وہ کیشیئر سے پیسوں کی دتھی لی, اس کو گننا شروع کیا, ابھی 5 نوٹ گنے تھے تو ڈاکو نے آ کر کن پٹی میں پسٹل رکھ دیا, حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف نہ کریں, ادھر دے دے میں خود ہی گن لوں گا جا کر. وہ لے کر ہو گیا, بچا لیا بینک نے. ہاں قسم ہے اللہ کی, میں نے سنا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پاکستان میں کچھ کوآپریٹو نام کے بینک بنے تھے, لوگوں کے بے شمار لاکھوں کروڑ روپے لے کر بھاگ گئے, آج تک لوگوں کو وہ پیسے ملے ہی نہیں. جو رب نے نقصان لکھا تھا بینک والا کیسے بچا دے گا آپ کو اس سے؟ اور اگر رب نے نہیں لکھا کوئی چور کیسے کر جائے گا آپ کا نقصان کو؟ ہاں اس کا مطلب ہے ایمان شیمان کا پتہ پتا کوئی نہیں ہے, ایمان ہمارا رب پر نہیں ہے, کس پر ہے؟ بینک پر. نفع نقصان کا مالک رب نہیں ہے, بینک ہے. اچھا چلو چند منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس آ گیا ڈاکو, گھر میں اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے, ڈاکو کو پتہ چل گیا, آ گیا, اس نے کہا نکال دو پیسے سارے ورنہ آئی گولی. آپ پیسے دینے کی بجائے اس کے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں. کیا کریں؟ کس نے کہا لڑیں؟ امام الانبیاء نے. قسم ہے اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑو اس سے جو آپ کے پیسے چھیننے آیا. موت اس کے ہاتھ میں نہیں, یا موت کس کے ہاتھ میں؟ رب کے ہاتھ میں. اور موت 2 مرتبہ نہیں آنی, زندگی میں کتنی مرتبہ آنی ہے؟ 1 مرتبہ ہی آنی ہے. اگر نہیں لکھی تو ڈاکو اڑی چوری کا زور لگا رہے, کروڑ گولیاں چلا رہے, وہ آپ کو مار نہیں سکتا. اور اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کے ایک تھپڑ سے بھی آپ نے مر جانا ہے. کیا خیال ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ رب, زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں, ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہیں. لڑے اس سے. اچھا چلو رب نے ایسے ہی میری موت لکھی ہوئی تھی, اگر میں لڑتا ہوا مر گیا, قتل ہو گیا, پیسے بھی لٹ گیا, جان بھی گئی, گھر میں رکھے ہوئے تھے, تو میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی, یہ شہادت کی موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت مل جائے, اور کیا چاہیے؟ نہ دورہ صفا, نہ دورہ عامہ, نہ دورہ خاصہ, نہ دورہ لشکر ہے, نہ جناب نہ ایجنسیوں کے دورے, اور نہ بارڈروں کو کراس کرنا, اور نہ پہاڑوں کو, نہ باڑوں کو. گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت مل گئی, اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ایک ہی وقت ہے, شہادت کی موت مل جائے تو یار اس سے بڑی موت کیا ہے؟ ہاں لگتا ہے سمجھ کوئی نہیں آ رہی, میری بات اوپر اوپر سے جا رہی ہے, آ رہی ہیں. پہلے لکھتا تھا, آج کا آمنا تو لکھتا سی, بڑھیا سننا بھی لکھتا سی, جا کے سن لو, سمجھ گئے. تیسری اور آخری مثال مجھے ختم کر دیں. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں سارے دن کے, صبح پھر آپ نے کام پر چلے جانا فجر کے وقت اٹھ کر. جی شکریہ, شکریہ آپ کا. آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر بنی آپ کی, شکریہ. میں زبردستی تو نہیں سنا سکتا تھا. اور میرے بھائیوں آخری مثال سن لے, میں ختم کرنے لگا ہوں. بہت چھوٹی سی مثال ہے, ایمان کو سمجھنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. یہ ساری اللہ نے قرآن میں 450 سے زیادہ آیتیں اتاری جہاد و قتال کے حوالے سے. کتنی؟ قرآن میں 450 سے زیادہ ہے. ساری آیتوں کو اکٹھا کرو نا, 7 پاروں کے برابر قرآن بن جائے گا. کتنا؟ 7 پاروں کے برابر قرآن ہو جائے گا. ساری آیتوں کو جمع کرو, 30 پاروں میں سے 7 پاروں کے برابر قرآن اللہ نے کس لیے اتارا؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی مدینے میں آ کر. کب اترنا شروع ہوئی؟ ہجرت کے بعد. پیارے پیغمبر کی ہجرت کے بعد ساری کی ساری نبوی زندگی 10 سالوں کی 10 سالہ نبوی زندگی قسم اللہ کی آیتوں کے اترنے کے بعد جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی. کہاں گزر گئی؟
जिहाद के मैदानों में। कहाँ गुजरी? जिहाद के मैदानों में। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सर पे खौल टूट गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फट गया। खौल की कड़ियां दोनों रुखसारों पर, इमाम नबी के रुखसारों पर चुभ गई, दोनों रुखसार लौलान हो गए आपका ऊपर वाला दांत टूट गया, होंठ भी फट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान होकर, बेहोश होकर उहद के दामन में गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। 70 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट गए उहद के मैदान में, 70 सहाबा शहीद हो गए। सारी जिंदगी अल्लाह की कसम नातिके वही खातमुन नबीयीन ने इन आयतों के नाज़िल होने के बाद 10 साल पूरी जिंदगी आपने जिहाद और किताल के मैदानों में गुजारी। सही है गलत है? हाँ, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जिहाद और किताल के मैदानों में हर तकलीफ बर्दाश्त की। मेरी तरह और आपकी तरह नमाजें पढ़ते, जुमा पढ़ते, दरस देते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह जरूर मिल जाती। क्या मुसीबत पड़ी हुई थी, सारी दुनिया से टक्कर ले रही थी। हाँ, क्या मुसीबत पड़ी हुई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म था रब का, लड़ो। अल्लाह के दीन के गलबे का रास्ता ये, इज्जत का रास्ता ये, दुनिया में अमन और सलामती का रास्ता ये, जालिमों के जुल्म को रोकने का वाहिद जरिया ये है, लड़ो। हुक्म है रब का। 10 साल आपने लड़ते हुए गुजार दिए, हत्ता कि शहादत की मौत पाई यहूदियों के गोश्त से, शहादत शहीद हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरा फिर सवाल है, माशाअल्लाह दुनिया में 2 अरब मुसलमान, 5 दर्जन हुकूमतें, सारे के सारे दिल में यकीन रखते हैं कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, और सारे माशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करते हैं। दयानतदारी से बताओ, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी की इत्तिबा भी करते हैं? हाँ, मुझे यहूदियों का और ईसाइयों का कसूर बताओ, वो काफिर क्यों? बताओ कसूर। वो इत्तिबा तो ये भी नहीं करते थे, वो काफिर हो जाए इत्तिबा ना करके ये मोमिन हो जाए, कैसे? मुझे बताओ कैसे है ये, फर्क क्या है? यकीन उनके पास भी है, इकरार उनके पास भी है, यकीन इनके पास भी है, इकरार इनके पास भी है, इत्तिबा वो भी नहीं करते, इत्तिबा ये भी नहीं करते। वो काफिर हो जाए और ये मोमिन हो जाए, ये कोई दयानतदारी नहीं। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, 15 नंबर आयत है सूरह हुजुरात की, खत्म हो गई बात, बहुत लंबी कर दी मैंने। 15 नंबर आयत है सूरह हुजुरात की, अल्लाह ने कहा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही तुम्मा लम यरताबू। ईमान वाले सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए, फिर किसी शक शुबे का शिकार नहीं हुए। व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अपने मालों और जानों औलादों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह कहते हैं ये सच्चे ईमान वाले हैं। इसका मतलब है जो माल और जान के साथ जिहाद नहीं करता वो झूठा है, ईमान में झूठा है, सच्चा गलत है। कुरान गलत है, आयत को निकाल देना चाहिए जो हमें झूठा ईमान वाला कहती है, ये अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा मेरे भाइयों, साफ साफ कह सकता हूँ, अला वजह बसीरत कह रहा हूँ, जो लोग जिहाद नहीं ना करते इन बेचारों को ईमान की समझ नहीं है, पता ही नहीं ईमान क्या होता है, पता ही नहीं ईमान क्या होता है। अगर ईमान का पता होता ना तो मुसलमानों की अल्लाह की कसम आज ये कैफियत ना होती जो कश्मीर में, जो फिलिस्तीन में, जो सारी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, कभी ऐसा ना होता अगर इनको ईमान की समझ होती। ईमान वालों के साथ रब का वादा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना 55 नंबर आयत है सूरह नूर की, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, सारी ज़मीन की हुकूमत तुम्हें दूंगा। मिल गई हमें सारी दुनिया की हुकूमत, हाँ? हमें तो सारी दुनिया क्या, ये छोटी सी खित्ती पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं मिली, इसके फैसले भी अमेरिका के कुत्ते करते हैं। हम करते हैं, अमेरिकी फैसले करते हैं, हर फैसला इसका अमेरिका करता है, हर फैसला इसका। अमेरिका ने अपने पालतू कुत्ते छोड़े हुए हैं हम पर बेशुमार, उनको पाला हुआ है, 75 सालों से पाल रहा है उनको। उनके जरिए वो हम पर हुकूमत कर रहा है, हुकूमत अमेरिका चला रहा है। रब का वादा गलत नहीं है, हमें ईमान का पता ही नहीं। तो मेरे भाइयों, खत्म हो गई मेरी बात। मेरी मिन्नत है आपसे, मिन्नत
मिन्नत इसलिए कह रहा हूँ मैं मनवा नहीं सकता, आप मेरे पास अथॉरिटी नहीं है मनवाने की, ना इख्तियार है, इसलिए मिन्नत कर रहा हूँ, मिन्नत ही कर सकता हूँ, या दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह सबके दिल नरम कर दे, या अल्लाह सबके सीने खोल दे, या अल्लाह हमारे सबके दिलों को अपनी और अपने नबी की इताअत की तरफ फेर दे। ये कुछ नहीं सकता हूँ, आपको दुआ ही कर सकता हूँ, या मिन्नत करता हूँ आपकी दयानतदारी से बताएं 5 वक्त बाजमात नमाज के हवाले से मेरे इन भाइयों से कोई कोताही हुई थोड़ी सी कि नहीं हुई? हुई है, थोड़ी सी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, तो मरते दम तक ऐसी चलती रहनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरी मिन्नत है, जो हो गया अल्लाह से माफ़ी मांग लो, कसम है अल्लाह की रब पिछली सारी नमाजें मुआफ़ करने के लिए तैयार बैठा है। आइंदा से तहैया करो, बाहर में जाए मेरी दुकान, मेरा पानी, मेरी ज़मीन, मेरे मवेशी, मेरे कारोबार, अजान होगी सबसे पहले नमाज, नबी का तरीका ये हो सकता है, ये करेंगे। सूदी लेन देन में कोई कोताही हुई है हमसे कि नहीं? बहुत हुई है। ये किस्तों का कारोबार सूद का कारोबार है, नगद और उधार की कीमत और अल्लाह की कसम इसको प्यारे पैगंबर ने सूद का करते हैं, सारे ही करते हैं। कोताही हुई है, ये मरते दम तक चलती रहनी चाहिए। आज तहैया कर लो, जो हो गया या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा 1 रुपया सूद का ना किसी को देंगे ना किसी से लेंगे, बताओ। और अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद के हवाले से भी कोताही हुई कि नहीं? थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा हुई है। मरते दम तक ऐसी रहना है या ख़त्म करनी है? बस मेरी मिन्नत है, ये ख़त्म कर दो, जो पीछे हो गया अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। आइंदा पता नहीं मलकुल मौत ने कब मेरे पास और आपके पास आ जाना, पता है कोई गारंटी है हमारे पास? 100 साल कोई पता नहीं है मेरे भाइयों। अगला सांस का नहीं हमें पता, अगला सांस भी आना कि नहीं आना। हमने यहाँ से उठकर घर भी पहुँचना कि नहीं पहुँचना, ये रब को पता है कब मलकुल मौत ने हमारे पास आ जाना है। ये ज़िंदगी बहुत नापायदार चीज़ है। अल्लाह के लिए अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर करने के लिए फ़िक्र करें, और वो ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। और ईमान को समझें और अपने औलादों को समझाएं और सही मानों में अपने ईमान को ताज़ा करें, जिंदा करें अपने ईमान को। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।